السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب العباد، راحت قلب ناشاد، ہم غم زدوں کے غم گسار، رسولوں کے سردار، مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں عالی جناب مفتی نعمان رضا قادری پٹنہ سے، انشاءاللہ عز و جل ان کا جو آج کا ٹاپک ہے روزہ اور سائنس، آئیے ان سے سماعت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے تیسرے چرن کے 7ویں دن میں ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ آج اور رمضان المبارک کے یا مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ یعنی دوسرا 10 دن، جسے ہم مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، یعنی مغفرت کا مہینہ۔ آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے روزہ اور جدید سائنس کے حوالے سے کہ روزہ کہاں تک آپ کے عقل کو آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ روزہ ہے کیا، اور روزہ اسلام میں کیوں فرض کیا گیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ ہم روزہ کو خواہ وہ مذہبی اعتبار سے دیکھیں یا پھر وہ مادی اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے روزہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہے، خواہ وہ جسمانی تربیت کی بات ہو یا روحانی تربیت کی بات ہو، ہر تربیت کو روزہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے۔ ہم پہلے مختصراً روزہ کو مذہبی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جدید سائنس کے اعتبار سے روزہ کو دیکھیں گے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام میں روزہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے ستونوں میں سے جو 5 ستون ہے، اس میں سے ایک اہم ستون روزہ ہے، یعنی فاسٹنگ، روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر دوسرے مذہبوں کی بھی اگر ہم بات کریں مذہبی اعتبار سے، تو خواہ وہ گوتم بدھ کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ گوتم بدھ جب کاشی کے علاقے میں، کاشی جو بنارس میں جو پڑتا ہے یا پرانا نام ہے اس کا، کاشی سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے شیشیہ کو یعنی اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو، ایوننگ میں اور مارننگ میں تم کھانا مت کھاؤ، یعنی دن بھر مت کھانا کھاؤ، کچھ وقت کھانے کے لیے خاص متعین کر دو۔ اور جہاں تک کرسچینٹی کی بات ہے تو کرسچینٹی میں بھی روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، نیا نیم، یعنی بائبل کی نئی صورت ہے،
उसके बाब मैथ्यू में लिखा है कि देखें, आपको अगर समझ में आए तो आप देखने की कोशिश करें। ये है नया नियम और ये है इसके रोजे के बाब। इन्होंने लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर मकरो फरेब ना झलके, तुम्हारे अंदर जो शैतान है वो तेरे चेहरों पर जाहिर ना हो, बल्कि तुम रोजा सफाई कल्ब के लिए रखो और सफाई और तरबियत कल्ब के लिए रोजा रखो। और जहां तक रोजा का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में जो हिंदुइज्म है या बुद्धिज्म है या फिर ताओइज्म की अगर बात करें तो हिंदुइज्म में भी आयुर्वेदियों का एक बहुत मशहूर कौल है कि लंघनम परम औषधम। मतलब ये है कि भूखा रहना ही, इट मीन्स फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडी। भूखा रहना सबसे बेहतर इलाज है। और इस्लाम में जो दिगर लोगों का कौल, आपने लुकमान हकीम को सुना होगा। लुकमान हकीम एक बहुत बड़ा हकीम और फलसफी है। लुकमान हकीम वो शख्स है जिसके बारे में कुरान में एक आयत नहीं बल्कि पूरी एक सूरत अल्लाह ने सूरह लुकमान के नाम से नाजिल फरमाया। लुकमान के ताल्लुक से ये बातें मिलती है कि हजरत लुकमान ने अपने बेटों को जब वसीयत कर रहे थे तो उसमें से एक नसीहत ये भी है, ऐ बेटो तुम दांतों का काम आंतों से ना लो। जो काम दांतों का है चबाना, वो काम आंतों से ना लो। मतलब यह है कि जो मशक्कत का काम दांत करता है उस मशक्कत में अपने आंतों को मत मुब्तला करो कि वो आंत वो काम लेना लगे, इसलिए कि दांत के काम अलग है, आंत के काम अलग है। अब जहां तक बात है भूखा रहने के ताल्लुक से, तो आपको मैं बताऊं कि रोजा भूखा रहना ही है। इस्लाम में अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया सूमू तसहू, रोजा रखो, मतलब भूखे रहो तुम सेहतमंद हो जाओगे। ये अजीब फलसफा है कि भूखा रहकर रोजा रखे, भूखा रहे, जिसमें में दिन भर कोई अनाज भी ना जाए, कोई ग़िज़ा भी ना जाए, और फिर वो ग़िज़ा खुद ब खुद बगैर कुछ अंदर में कोई फ्यूल या ईंधन रहे हुए वो जिस्म की सफाई कैसे हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है? तो हम लोगों को ये बात मालूम है कि हर लोग एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या घरों में गाड़ी रखते हैं। जब कभी मोबाइल आपका हैंग करने लगता है तो आप क्लीनर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रेजिजुअल फाइल्स है या कैचे फाइल्स हैं इन फाइलों को खत्म कर दे और उनसे उनके कुछ फाइल को दूर कर दे ताकि उसमें कुछ जगह खाली हो जाए, तो आपका मोबाइल खुद ब खुद फास्ट रन करने लगेगा। इसी तरह से गाड़ी की भी सर्विसिंग होती है। मतलब यह है कि हर एक चीज की ओवरहाउलिंग और फिर ट्यूनिंग या सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। जब वो खराब हो जाए तो उसे ट्यूनिंग करना पड़ता है, उसे ओवरहाउल करना पड़ता है। मतलब यह है कि उसे साफ करना पड़ता है, उसके अंदर जो गंदगी है, उसके अंदर जो कचरा है और उसके अंदर जो रेजिडुअल चीज है उन चीजों को निकालना पड़ता है। जो अनयूज्ड जो एलिमेंट्स उनके अंदर है, जो बेकार चीजें उसके अंदर है, उसको निकालना पड़ता है ताकि वो सही ढंग से वो चीजें चल सके और वो चीजें रन कर सके। तो अल्लाह की एक हदीस और दूसरी हदीस में अल्लाह तबारका व तआला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और यह आखिर वक्त मर्जुल वक्त में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मर्जुल मौत का वक्त होता है उसमें एक अहम बात यह भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों तुम रोजा रखा करो, तुम रोजा रखा करो, तुम रोजा रखा करो ताकि तुम सेहतमंद हो जाओगे। जहां तक अगर हम भूख का तजर्बा करते हैं तो हम भूख रह कर अपने जिस्म को कितना ज्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने जिस्म को कितना ज्यादा सैनिटाइज कर सकते हैं, और अपने जिस्म में ये तमाम चीजें जो हम ऊपर से डालते ग़िज़ा के तौर पर, अगर हम वो चीजें अंदर ना डालें और ये ग़िज़ा डालने का काम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो जाए, मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, तो फिर वो चीजें किस तरह से वो रन करने लगता है, वो किस तरह से फास्ट करने लगता है। तो आप देखें अंग्रेजी जुबान में रोजा को फास्टिंग कहता है। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद तेज चलना। तो ये भी एक अजीब फलसफा है। मैं आपको भूख के हवाले से दो तीन बात बता दूं
کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے زمین پر جو چیزیں پیدا کی ہے وہ زینت کے لیے، زمین کی زینت کے لیے ہے، تاکہ ان کے ذریعہ تم کو آزمائیں۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی، حضرت ابن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے آزمائے گا، کیوں آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کیا آزمانا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، تمہیں یہ جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں کون عقل مندی سے کام لیتا ہے، کون حلال کو حلال جانتا ہے، کون حرام کو حرام جانتا ہے۔ عام طور پر اسلام میں حلال وہی اشیاء ہے جو اشیاء آپ کے جسم کے لیے مفید ہو، اور حرام وہ غذائیں ہیں جو آپ کے جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ چیز ہو۔ میں بزرگوں کے حوالے سے بھی گفتگو کر دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ ضرورت سے زائد کھانا چھوڑ دینا، ضرورت سے زیادہ ہوتا یہ کیا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلی بدعت، یعنی اٹ مینس دا فرسٹ انوویشن ان اسلام، جو پہلی بدعت ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، یہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں ہے۔ یہ حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ ضرورت سے زائد کھانا چھوڑ دینے کے برابر دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ضرورت سے زائد کھانا انسان چھوڑ دے، تو وہ انسان ہمیشہ ہر اعتبار سے وہ صحت مند رہے گا اور وہ ہیلدی رہے گا۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ حکمت اور علم، اٹ مینس وزڈم اور نالج کیسے انسان کو ملتا ہے؟ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری ہی فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے میں، کہ بھوکا رہنے میں حکمت اور علم حاصل ہوگا، اور پیٹ میں اور زیادہ کھانے میں انسان جہل اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ عبادت اٹ مینس ورشپنگ از اے پروفیشن، عبادت ایک پیشہ ہے، اور اس کی دکان کیا ہے؟ پتا ہے کہ اس کی دکان تنہائی ہے، لونلینس۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ آپ گھر میں اکیلے رہیں۔ آج جو مریض جو کورونا کے پیشنٹ ہوتے ہیں اسے آئسولیٹ کیا جاتا ہے، مطلب وہ اکیلے رہیں تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے اور وہ خود بھی بیماری سے محفوظ ہو جائے اور شفا یاب ہو جائے، اور دوسروں کو بھی وہ بیماری دوسروں کے اندر بھی منتقل نہ کرے، مطلب آئسولیٹ رہے، وہ تنہا رہے۔ تو وہی چیزیں حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ عبادت ایک پیشہ ہے اور اس کی دکان تنہا رہنا، اٹ مینس آئسولیٹڈ رہنا ہے، اور اس دکان میں جو کام کرنے کی چیز ہے وہ ہے بھوک، ہنگر، وہ بھوکا رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اسلامک فلاسفر کے حوالے سے۔ اب اور بھی جو دوسرے فلاسفر ہے اسلام کے علاوہ، جیسے ماڈرن میڈیکل سائنس کے جسے فادر آف ویسٹرن میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں، جس کو ہپوکریٹس اور اردو میں بقراط کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو صحیح اور سلامت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم فاسٹنگ اختیار کرو، تم روزہ رکھو، تم بھوکا رہو۔ اسی طرح سے یہی چیزیں دیگر فلاسفر نے بھی یہ باتیں کہی ہے، دیگر فلسفی نے بھی یہ ساری چیزیں کہی ہے، اور جو آج کے پیریڈ کے جو فلسفی ہیں انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں کہی ہے۔ اس زمانے کے جو سوکریٹ تھے اور وہ پلیٹو تھے، مطلب سقراط اور افلاطون، ان کا بھی نظریہ کسی طرح اسی حد تک ملتا جلتا ہے کہ بھوکا رہنے میں صحت یابی ہے۔ اور آج کے دور کی اگر بات کریں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک مشہور پروفیسر ہے جسے مور پالڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ کے علاوہ کوئی دوسرا فارمولا نہ بھی دیتا
तो इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को एहसानमंद होना चाहिए और उसे इस्लाम के तई शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस्लाम ने बेहतरीन फार्मूला दिया है कि अपने जिस्मानी या रूहानी या फिर नफसानी तरबियत किस तरह से कर सकें, अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकें, अपने डिजायर्स को कैसे लिमिट कर सकें और अपने जिस्म को किस तरह से वो सेहतमंद रख सकें और अपने रूह को किस तरह से तरबियत कर सकें कि वो रूह जिनका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से हो जाए। ये कुरान में भी है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, खुदा के करीब हो जाओ। जब आप भूखे रहोगे, ये कुतुब और अब्दाल जितने हैं ये भूखे रहते हैं, भूखा रहने की वजह से ही इनके अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है, वो कुव्वत पैदा हो जाती है कि ये हवाओं में और फजाओं में उड़ने लगता है और ये भूख की कुव्वत की बुनियाद पर ये समंदरों में बगैर किसी वसीले के नंगा पांव चलने लगता है। तो ये सारी चीजें एक तमहीद के तौर पर मैंने आपके सामने पेश कर दी है कि रोजा खा वो रिलीजियस व्यू से हो या फिर वो मटेरियल व्यू से हो, हर एतबार से रोजा हर लोगों के लिए बेहतर है, फायदामंद है, सूदमंद है, मुफीद है और यूजफुल है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस्मानी एतबार से रोजा कितना आपको फायदा पहुंचाता है। भूख आपको किस हद तक आपके जिस्म को सैनिटाइज कर देता है, आपके जिस्म को क्लीन कर देता है, आपके जिस्म को साफ कर देता है। सबसे पहले हमें यह प्रोसेस जानना होगा कि हम जो चीज भी खाते हैं अपने मुंह से, वो ग़िज़ा, आमतौर पर उस ग़िज़ा को हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं, 3 किस्मों में मुनक़सिम करते हैं। एक तो वो किस्म है जैसे फल वगैरह, और दूसरे वो हरी सब्जियां, और तीसरी चीजें जैसे चावल, रोटी या दाल जो अनाज के रूप में, अन्न के रूप में। ये 3 कैटेगरी को हम 3 कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरी में हम रखते हैं। तो फल वगैरह आमतौर पर 2 से 3 घंटों में आपके पेटों में हजम हो जाता है। होता क्या है कि जैसे ही हम अपने मुंह में लोकमा डालते हैं तो ये खाना डायरेक्ट आपके स्टोमक में, मतलब आपके पेट में पहुंचता है, वहां 1 घंटा रहता है और उसके बाद फिर वहां से स्मॉल मतलब छोटी आंत में चला जाता है वो खाना, और फिर वहां से 1 घंटा रहने के बाद वो बड़ी आंत में, और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते के जरिए बाहर हो जाता है। लेकिन सब्जियों के लिए 4 से 6 घंटा आपको जरूरत है। मतलब ये है कि हम जब हरी सब्जी खाते हैं तो 2 घंटा इसोफेगस के जरिए जब हमारे पेट में जाता है तो 2 घंटा हमारे पेट में वो पचने का काम करता है, वो खाना टूटता फूटता है और फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में, और फिर बड़े आंत में चला जाता है, और उसके बाद फिर वो खाना बाहर। लेकिन हम जो सख्त और पुख्ता खाना खाते हैं, मतलब यह है कि चावल, रोटी या दाल वगैरह, आमतौर पर दाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग ही खाते हैं, ये भी इत्तेफाक है। बाहर के लोग दाल वगैरह इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानते हैं, लेकिन वो दाल खाते नहीं। यूरोप वाले लोग दाल नहीं खाते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये खाना जो हम अनाज के रूप में खाते हैं, फसल के रूप में खाते हैं, मतलब दाल, चावल, रोटी वगैरह, इसको, या फिर जंक फूड जो चीजें होती है, जैसे आप पिज्जा है, बर्गर है या कटलेट है या और इसी तरह समोसे है, इस सब चीजों को पचाने के लिए एक अच्छा खासा वक्त हमें जरूरत होती है। जैसे कि इससे 12 से 18 घंटे की जरूरत होती है। अब उस खाने को अगर हम खाते हैं, चावल हम खा लिए या रोटी हम खा लिए, दाल खा लिए या जंक फूड खा लिए या फिर तेलों में तले हुए चीजों को हम खा लिए, तो उसे 12 से 18 घंटे पचाने में लगते हैं। अगर 4 घंटा अगर हम पेट में रखते, स्टोमक में वो खाना रहता है, वहां से टूटता फूटता है, और फिर वो 4 घंटा स्मॉल छोटे आंत में, और फिर वहां से बड़े आंत में वो चला जाता है। तो आप देखा 12 घंटा। तो अब 12 घंटे के अंदर आमतौर पर ये होता है कि हम फिर दूसरा खाना खा लेते हैं। अगर कोई उसी तरह का खाना, फिर जैसे अगर हम रात में 8 बजे रात में खाना खाएं, तो फिर सुबह हम नाश्ता भी इतना ज्यादा लेते हैं कि फिर वो 12 घंटे के बाद वही अमल शुरू कर देता है। मतलब ये है कि आपके जिस्म में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आमतौर पे आप समझे कि आपके जिस्म के 2 काम है। एक काम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि वो पचाता है, और एक कुव्वत है जिसे हम हीलिंग पावर कहते हैं। मतलब ये है कि वो जिस्म में कोई भी खराबी हो, उस खराबी को वो दुरुस्त कर देता है,
उस खराबी को वो सही कर। सपोज दैट अगर आपके जिस्म में कोई जख्म हो जाए तो वो जख्म खुद ब खुद भर जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो नहीं भरता, लेकिन आमतौर पे भर जाता है जिसका जिस्म सही और सलामत हो। तो कहने का मतलब यह कि अल्लाह ने आपके अंदर वो कुव्वत बख्श रखी है जिस कुव्वत के जरिया आपके जिस्म को खुद ब खुद हील किया जा सके, मतलब खुद ब खुद वो तंदुरुस्त हो सके, जिसे हम हीलिंग पावर कहते हैं। तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है पचाना, और दूसरा का काम क्या है, हीलिंग पावर। आमतौर पर आपका बॉडी एक ही काम एक वक्त में करता है, बैक वक्त दोनों काम आपके जिस्म के लिए करना मुमकिन नहीं है। हम क्या करते हैं, खाना इतना ज्यादा खाते हैं, ग़िज़ा इतना ज्यादा भर लेते हैं, और इतनी ज्यादा ग़िज़ा खाने की वजह से हमारे जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा रन करता रहता है, जिस वजह से हीलिंग पावर को उतना वक्त नहीं मिल पाता है कि वो उसके जरिया, जिसको हम इम्यूनी सिस्टम भी कहते हैं, जिसके जरिया इम्यूनी सिस्टम से आपके बीमारियों को दूर कर सके या फिर बीमारियों को वो बचा सके, मुदाफात कर सके। इसको मुदाफाती निज़ाम भी उर्दू में कहते हैं। अब आप देखें आमतौर पे बीमारियां होती क्यों है, उसकी वजह यह है कि खाना जब हम खाते हैं, खासतौर पर जंक फूड वगैरह जब खाते हैं, तो वो खाना जैसे ही पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद आंतों में चला जाता है। जो खाना पच नहीं पाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमजोर है तो वो खाना पचा नहीं पाए तो वो खाना सड़ जाता है। अब आप देखें, आप जब कभी इंटेस्टाइन को देखने की कोशिश करें तो वो एक नली नुमा है, एक पाइप की तरह, और उस पाइप के अंदर में बुलबुले जैसे हैं, जिसको हम इंग्लिश में विलाई या विली कहते हैं, विलाई कहते हैं। वो विलाई बुलबुले नुमा होता है जिस अंदर में, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर में होता है। वो क्या करता है, जो खाना आप खाते हैं तो उस खाने से जो ग़िज़ाइयत होती है, जो प्रोटीन होता है, जो उसमें जो कुव्वत होती है, जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को वो सोख लेता है और ब्लड के जरिया जिस्म के दूसरे हिस्सों में वो पहुंचाने की कोशिश करता है, पहुंचा देता है। अब आप देखें, आपका खाना अगर साफ ना हो, आपका खाना पचे नहीं, आपका खाना सड़ जाए, ये गंदा हो जाए, तो अब आप देखें कि आपके इंटेस्टाइन में जो विलाय है, ये विलाय आपके गंदगी को सोखेगा और फिर वहां से जो ब्लड को वो देगा तो वो गंदगी देगा। जैसे गंदगी देगा तो वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड जो है अपना सर्कुलेशन वो उतना सर्कुलेट उतना जल्दी नहीं करेगा, और ज्यादा जैसे ब्लड भारी हो जाता है, भारी होने की वजह से वो ब्लड चलने में उसको तकलीफ होती है, धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे चलना ही इसे हम क्या कहते हैं कि जब वो मारता प्रेस करता है, प्रेशराइज जब होता है तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो आमतौर पर हम देखें कि वो गंदा खाना की वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फिर वही गंदगी विलाय के जरिया सोख कर जब आपके एयरवेज में चला जाता है और वो गंदगी वहां बैठ जाती है तो आपको एस्मा जैसे बीमारी हो जाती है, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं। और वही गंदगी जब विलाय सोख कर आपके आर्टरी में लेके चला जाता है तो आपके हार्ट को ब्लड पंप करने में तकलीफ होती है, जिसकी बुनियाद पर वहां पर जो आर्टरी में रास्ते आस्ते आस्ते ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है। वही चीजें, वही विलाय आपके गंदा खाना को जिस्म के दूसरे हिस्सों में, जैसे आपके अगर लंग्स में चला जाए तो वो गंदगी लंग्स में जाने के बाद आपको कफ वगैरह होता है। वही गंदगी अगर इंटेस्टाइन में चला जाए तो उससे कोई दूसरी बीमारी बड़े इंटेस्टाइन में चला जाए तो आपको कोई दूसरी बीमारी हो जाती है। और अगर वही बीमारी आपके स्किन में चला जाए, वही चीज है, वो गंदा खाना, वो बगैर पचा हुआ खाना आपके जिस्म के दूसरे हिस्से स्किन में चला जाए, यानी आपके जिल्द में चले जाए तो जिल्द की बीमारी होने लगती है, जैसे एक्जिमा है, सोरायसिस है, या उर्दू जुबान में हम कहें खारिश है, खाद है, खुजली है वगैरह, ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन जब हीलिंग पावर आपका ठीक हो और वो गंदगी आपके जिस्म में जमा ना रहे तो आप समझें कि वो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय है, वो विलाय आपके खाने को, जो आपके खाने के अंदर जो एनर्जी है जिसको वो सोखता है, तो वो अगर बेहतर है, वो दुरुस्त है और वो एनर्जी को, वो बेहतर एनर्जी को वो, और गंदा नहीं है बल्कि वो साफ सुथरा है, उसको अगर वो सोखता है और जज्ब करता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो पहुंचाता है ब्लड के जरिया, तो आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं होगी। और इस तरह से आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को महफूज कर लेंगे। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आपका कुव्वत, आप ये इन्हिज़ाम मुदाफ़ात, ये हजम करने का जो निज़ाम है,
निज़ाम इंहिज़ाम जो हजम करने का वो आपका दुरुस्त हो जाता है। फिर इम्यूनी सिस्टम, आज कहा जाता है ना कि आपका अगर इम्यूनी सिस्टम सही हो तो कोरोना जैसा वायरस भी आपके जिस्म को कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि इम्यूनी सिस्टम जैसे ही वो वायरस आपको अटैक करने की कोशिश करता है और इम्यूनी सिस्टम आपका मजबूत है तो उसको अपने अंदर आने ही नहीं देता और उसको हमला करने ही नहीं देता है। लेकिन रोजे में अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत अता कर रखी है कि रोजा के जरिया जब इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको हर एतबार से मजबूत कर देता है। आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़े हो तो आखिर में जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद होने वाला था तो हिंदुस्तान जो आजाद हुआ है वो भी रमजानुल मुबारक के महीने में 27वीं रमजान को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आप समझे बात को। और उस पीरियड में आपके हिंदुस्तान के जो गांधी जी थे वो भी फास्टिंग में, उपवास में थे। उसका भी यकीन था कि हम रोजा रखेंगे तो हम मजबूती से दुश्मनों के खिलाफ लड़ पाएंगे। नजरियाती जंग हो या फिक्री जंग हो या फिर उनके खिलाफ जिस तरह का जंग हो, हम उस जंग से उनका मुकाबला बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े से बड़े लोगों ने बताया है कि रोजा और इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं, खा रोजे का नाम उपवास रख लें या रोजे का नाम व्रत रख लें या रोजे का नाम फास्टिंग रख लें, या और बात है कि उसको रखने का तरीका अलग अलग है, उसका शक्ल, उसकी फिगर अलग अलग है। और कोई अनाज नहीं खाता है तो सिर्फ दिन भर पानी पीकर रहता है, कोई पानी भी नहीं पीता है तो दिन भर वो सिर्फ फ्रूट से ही खाकर रहते हैं। कोई ऐसा है, यहूदियों के यहाँ 40 दिन तक रोजा रहते हैं, ईसाइयों के यहाँ गुड फ्राइडे के दिन तो जरूर रोजा रखते हैं, हिंदुओं के यहाँ भी मुख्तलिफ तरह का व्रत है। उनके यहाँ एकादशी व्रत खास तौर पे मशहूर है, उसके अलावा भी दूसरे व्रत है, पति व्रत है, रवि व्रत है, वगैरह वगैरह। जो भी कामयाबी, अगर वो कामयाबी की कामना करते हैं, कामयाबी की ख्वाहिश करते हैं तो वो रोजा रखते हैं। इस तरह से ये तो दुनियावी तरह से उसको देखने की मैंने कोशिश की। लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम में जो रोजा रखा गया है वो 30 दिन का रोजा, ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है, इस वजह से कि 30 दिन में इतना ज्यादा वक्त आपके जिस्म को, आपके बॉडी को मिल जाता है कि उस वक्त में अपने खाना को वो मुकम्मल तौर पर खाना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ दिन के लिए वो खाली भी रख सके, आपका पेट भी खाली रहे और आपका आंत भी खाली रहे। और जैसे वो खाली रहता है तो हीलिंग पावर खुद ब खुद वो बूस्ट कर जाती है। जिस तरह से मोबाइल को स्कैन करने से मोबाइल को, उससे जो मोबाइल में जो गंदगी, जो रेसिडुअल फाइल्स होते हैं या जो और दूसरी गंदगियां होती है, उनको खत्म करने से मोबाइल खुद ब खुद वो फास्ट रन करने लगता है बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी मुशाबहत के। मैं आपको बता दूं कि रोजा उदार वही होता है कि अपने बॉडी को अगर वो फास्ट करना चाहता है, अपने जिस्म को वो तंदुरुस्त करना चाहता है, अपने जिस्म से वो सुस्ती को खत्म करना चाहता है, अपने जिस्म से वो गंदगी को खत्म करना चाहता है, अपने ज़हन से, जिसमें से सिर्फ नहीं अपने ज़हन और दिमाग से भी अगर गंदगी को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो रोजा रखे। आमतौर पे आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ भूखा रहने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि उसकी जबान दुरुस्त ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रोजा रखता हो उसे चाहिए कि ला यरफुस वला यशहफ, ना वो कोई गंदी बात करे और ना कोई शोरो शगब करे, ना कहीं वो हल्ला गुल्ला करे। और अगर कोई उससे लड़े झगड़े तो कह दे कि मैं रोजे से हूं, वो कहे कि मैं रोजा से हूं, मैं रोजा रखे हुआ हूं। तो आप देखें कि सिर्फ आपके जिस्म को ही खाली नहीं रखना है बल्कि आपके ज़हन को भी खाली रखना है, आपके दिमाग को भी खाली रखना है और आपकी जुबान को भी। ये सारी चीजों को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर देना। जैसे ही आपका लॉकडाउन रहेगा, आपकी जुबान भी लॉकडाउन रहे और आपका ज़हन भी लॉकडाउन रहे। और ये सिर्फ एक तरफ क्या है, जिस तरह से लॉकडाउन के दिनों में हम सिर्फ अपनी जान की परवाह करते हैं कि जान है तो जहान है, जिस तरह से हम अपनी जान की परवाह करते हैं, इसी तरह से रोजादार सिर्फ और सिर्फ अपने
आपको अल्लाह के बारगाह में झुकाकर अपनी भी परवाह करता है, अपने अहलो अयाल की भी परवाह करता है, अपनी सोसाइटी की भी परवाह करता है, अपने मुआशरे की भी परवाह करता है, और अपने मुल्क की भी परवाह करता है, और अपने वतन की भी परवाह करता है। तो मेरे ख्याल से हर एतबार से रोजा मुफीद है। जिस एंगल से आप रोजा को देखना चाहें उस एंगल से आपको रोजा बेहतर से बेहतर नजर आएगा। शर्त यह है कि बॉडी के शर्त यह है कि जिस्मानी जिस्म को आप भूखा रखें। सुबह पहले जो रोजा था, मैं पहले भी बताया था, पहले जो रोजा था कौमे मूसा में, वो रोजा 24 से 48 घंटा तक रोजा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोजा रखते थे और मुसलसल रोजा रखते थे। उसे हम सौमे वेसाल कहते हैं। तो सहाबा किराम ने देख कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे को अपनाना चाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतइमुनी रब्बी वयस्कीनी रब्बी, लोगों मुझे क्या देखते हो, मुझे मेरा रब खिलाता है, मुझे मेरा रब पिलाता है। इसलिए तुम्हारे लिए यह है कि तुम सुबह सवे तुलुए सादिक से लेकर गुरूबे शम्स तक रोजा रखो, इतना ही रखो। और उसके अलावा अब आपको एक बात और भी बता दूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। वो ये है कि रोजा के दिनों में हम आमतौर पे ये देखते हैं हिकमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी ताखीर से करो, इफ्तार ताजील से करो। मतलब सहरी देर तक करते रहो। कितनी देर, एक मसला है, कितना देर तक वो सहरी करता रहे। तो बताया गया कि एक तो आखिर वक्त में वो सहरी करेगा, और आखिर वक्त में वो उतना देर तक मतलब चबा कर खाएगा ताकि आपके दांत का काम हो। मतलब ये नहीं कि दांतों का काम आंत करने लगे, आप चबा कर खाएं। और वक्फा कितना हो, डिस्टेंस, मतलब यह है कि ड्यूरेशन कितना हो। तो बताया गया कि जितनी देर में आप कुरान की 40 आयतें पढ़ सकते हो उतनी देर तक आप कम से कम इफ्तार को, उतनी देर कम से कम आप सहरी को खाएं, सहरी करें। और इफ्तार जल्दी, जितनी जल्दी मुमकिन हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निअमा सहरुल मुमिन अत्तमर, मोमिन की सहरी बहुत ही बेहतर है। और वो क्या है, वो है खजूर। खजूर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कुव्वतें अपने अंदर अपने अंदर रखती है, बहुत सारी सलाहियतें अपने अंदर रखती है, बहुत सारे कमालात उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने डाल के रखा है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी करते थे, आमतौर पर वो इफ्तारी 3 चीजों से तस्करा आता है। वो तिरमिजी शरीफ में मुख्तलिफ रिवायत से हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते थे। आमतौर पे वो रुतबत कहते हैं जो फ्रेश डेट्स हो, ताजा खजूर जिसको हम बोलते हैं, और या तो तमर बोलते हैं ड्राई डेट्स, जिससे हम आमतौर पे अपनी जुबान में छुहारा कह सकते हैं। तो या तो वो ताजे खजूर से वो इफ्तारी करते थे या फिर सूखे खजूर से इफ्तारी करते थे। अगर वो भी ना मिले, हसा मिन हसवातिल मा, हसा हसवातिन मिनल मा, मतलब यह कि पानी के एक चुल्लू से। और ये तीनों चीजें एक हयात बख्श है आपके जिस्म के लिए और कुव्वत बख्श। और बहुत जल्द इफ्तारी कर 2-3 खजूर से इफ्तारी करते थे, और इफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद फिर वो इफ्तारी फरमाते थे। मतलब यह है कि आप अपने जिस्म में, जैसे ही होता है कि हम आमतौर पे क्या करते हैं कि इफ्तारी जैसे करने लगते हैं, बहुत लोग आमतौर पे गांव घर में और शहर में मैंने देखा है, ये होता है कि जैसे मुअज्जिन अल्लाह अकबर शुरू किया, अजान देना शुरू किया, तो इधर इफ्तारी करने वाले जो रोजादार है वो शुरू कर देते हैं। ये तरीका गलत है। जब तक कि वो मुकम्मल अजान ना दे दे, अजान का जवाब ना दे दे, उस वक्त तक इफ्तारी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अजान का जवाब देना भी वाजिब है, आप इस चीज को भी लिहाज रखें। उसके बाद फिर इफ्तारी आम जब बहुत मुख्तसर हम खाना खाएंगे तो होगा ये कि हम
जैसे दिन भर भूखा रहते हैं और एक ही मर्तबा बैक वक्त एट ए टाइम हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ जो इफ्तार करते हैं हमारे मुल्क में, तो वो इफ्तार आमतौर पे जंक फूड से भरा होता है। वो जंक फूड आपके जिस्म के लिए हमेशा हानिकारक है। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने में हमेशा वो आमतौर पर खजूर तो उसके घरों में हमेशा रहता था। खजूर के अलावा कोई दूसरी चीजें गोश्त वगैरह का तस्करा भी मिलता है, लेकिन वो कभी कभी जहां तक रोटियों का तस्करा मिलता है तो हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया, और कभी ऐसा होता तो 3 महीने तक रोटियां उनको मुयस्सर नहीं, ऐसा नहीं कि उनको मिलती नहीं थी, मतलब यह है कि रोटियां तो उनके पास थी। मतलब यह कि अल्लाह की राह में अपने लिए अपने आप को सुपुर्द कर देना, ये सुपुर्दगी अल्लाह को कर देना, इसी को तो इस्लाम कहते हैं ना। इस्लाम का मतलब ये होता है कि सबमिशन, अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह के सामने वो सजदा रेज हो जाना। हम जिसके लिए भी जो काम भी करें हम अल्लाह के लिए करें, किसी से दोस्ती करें तो भी अल्लाह के लिए, किसी की भलाई कर दें तो भी अल्लाह के लिए। अपने आप को अल्लाह ताला ने आपको अगर जिस्म जैसी अजीम नेमत से नवाजा है तो जिस्म को सही सलामत रखे। ये जिस्म अल्लाह ने आपको दिया है, इसको मजे उड़ाने के लिए नहीं बल्कि ये अमानत है, अल्लाह ने आपको अमानत दी है। अब ये जरूरी है कि आप उस जिस्म की हिफाजत करें। उस जिस्म को महफूज रखने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप भूखा रहें। ये हमारे बुजुर्गों का भी तरीका रहा है, हमारे नबियों का भी तरीका रहा है, हमारे सहाबा इकराम का भी तरीका रहा है भूखा रहना। इसलिए कि भूख आपको तक़वियत अता करती है, फास्टिंग आपको स्ट्रेंथ करती है, फास्टिंग आपके इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रेंथ करती है, फास्टिंग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ करती है, फास्टिंग आपके जिस बॉडी को स्ट्रेंथ करती है, फास्टिंग आपके मेंटल जो चीजें हैं, मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल इक्विलिब्रियम को यानी जहनी तवाजुन को बरकरार रखती है। फास्टिंग आपको समाजी एतबार से यानी हर एतबार से आपके लिए मुफीद है, खा वो सोशल बेनिफिट हो, इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, या फिर फिजिकल बेनिफिट हो, या मेटाफिजिकल बेनिफिट हो। जिस एतबार से देखें हर गुण, हर प्रॉपर्टीज और हर किस्म की उसमें अच्छी सिफत मौजूद है कि वो आपको रोजे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि रोजा को ना भूलें, बल्कि रोजा हम खुद भी रहें और दूसरों को भी रोजे की तरगीब करें, अपने घर में बच्चों को भी रोजे की तरगीब करें, अपने घर में औरतों को भी तरगीब करें। आमतौर पे बुजुर्गों का यह कौल भी है कि जो औरतों को अल्लाह तबारक व तआला जिस औरतों को गोद नहीं भरता है, ये भी है, मैंने पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से जो मफहूम मिलता है वो ये है कि अगर किसी का गोद खाली हो और अगर गोद भरना चाहता हो, वो चाहे कि वो रोजा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उस रोजे की बरकत से उसके जिस्म को सही व सलामत कर देगा और अपनी खास नेमत से उसे नवाजेगा, और उसके गोद में भी अल्लाह तबारक व तआला एक खास औलाद की नेमत में, जो कुरान में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने क्या औलाद, माल और औलाद ये दुनियावी जिंदगी की एक जीनत है, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया के लिए खूबसूरत चीज अगर है वो माल है और औलाद है। अगर किसी बहन को या किसी माँ को औरत की बच्चों की ख्वाहिश है और अल्लाह तबारक व तआला उनकी गोद खाली रखे हुए, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो रोजा रखें। रोजा के दिनों में नमाज, तस्बीह और दिगर जो नवाफिल वगैरह है उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। इन्हीं चंद बातों के साथ, चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर रोजे के हवाले से मजीद गुफ्तगू होगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये हमारे अरशद भाई साहब के जो फैजान गरीब नवाज चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और रमजानुल मुबारक की नेमतें जब सब लोगों को मिले तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेमतों में से कुछ छींटे हमारे अरशद भाई को भी अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान हुआ इस पर अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे अरशद खान अशरफी नागपुर से हैं। एट ए टाइम इनको मैंने इनवाइट किया और इन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा।
کیونکہ آج کے جو شناخت ہے اعظم رضا تحسینی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جڑ نہیں پائے۔ آئیں اب انشاءاللہ ہمارے آج کے معزز مہمان ارشد خان اشرفی ناگپور سے، ان سے نعت پاک سماعت فرماتے ہیں۔ ارشاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود اہل بیت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہم حبیبنا اطلبی گواہیہ وعافیت الابدان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے۔ یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہو، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیدنا سیدنا زینب سیدنا حسن سیدنا حسین والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم ویسے ختم ہو چکا ہے، 2 شعر سماعت فرما لیجیے۔ ارشاد۔ جی جی پڑھیں ارشد بھائی، انشاءاللہ آپ جتنا بھی پڑھنا ہو پڑھیں۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکلاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکلاب تیرا، تو شاہ خوبا
जाने जाना है चेहरा किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगी आका ना बन सकी सुभान है अल्लाह ना सुभान बन अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल तेरी जवाब तेरा तेरा जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं का है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं का है सच पूछिए अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है सच पूछिए अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो है दोनों जगह यारो जागे मोहम्मद की न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला के हुस्नो सवाब ऐसा है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब सुभान अल्लाह तेरा सुभान अल्लाह। मेरे लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है तुझे पे हजार पर्दे जहाँ में लाखों ही तूर बनते जहाँ में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा जहाँ में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा है तू भी कायम अजीब इंसान जो ख्वाब महशर से है हरासा है तू भी कायम अजीब इंसान जो ख्वाब महशर से है हरासा अरे तू जिनकी है नात पढ़ता अरे तू जिनकी है नात सुनता अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही रखेंगे हिजाब तेरा अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा तू जागे होबा तू जाने जाने जाना तो शाहे होबा तू जाने जाना है चेहरा ओ मुल किताब तेरा सुभान ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह और नवाजे हमारे अरशद भाई को, आमीन अल्लाह और तड़प अता फरमाए। आमीन। जी मुफ्ती साहब कुछ फरमाना चाहेंगे, दुआ फरमा दें।
हाँ, अब दुआ का वक्त हो गया, वक्त भी बहुत कम है हमारे यहाँ। जी जी जी। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन कार साजा बंदा नवाजा, जो आज के प्रोग्राम में जो कुछ भी तेरे हबीब का जिक्र हुआ और कुछ दुरूद पाक और कुछ नातिया अशार पढ़े गए, या अल्लाह इस पढ़ने के अमल में और इस जिक्र के अमल में किसी किस्म की कमी या कोताही हो, अपने फजल से उस कमी और कोताही को माफ फरमा, और इस रमजानुल मुबारक के मुकद्दस दिनों में ये छोटा सा अमल अपने बारगाह में कबूल अता फरमा। या आमीन अल्लाह, या जो रब्बल आलमीन। वीवर है, जो नाजरीन लोग है, जो सब्सक्राइबर है, या अल्लाह सब लोगों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा, रोज़े की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत सबके दिलों में जागुज़ी फरमा। या इलाहुल आमीन आलमीन, या अपने रब्बल हबीब आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, रमजानुल मुबारक के रोज़ों के सदक़े में, क़ियामुल लैल यानी तरावी के सदक़े में, और दिगर नेक और नेक काम के सदक़े में, या अल्लाह हम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे, हमारे खताओं को माफ़ फरमा। आमीन या या रब्बल अल्लाह आलमीन। कबूल फरमा, और अरशद आमीन भाई की सेहत व सलामती व तंदुरुस्ती अता फरमा। वाखिर आमीन। सलामती अता फरमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या अलैहि अल्लाह, हमारे वसल्लम। जितने शुरका हैं, जितने भी महफिल में शरीक होते हैं, उनके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में, दराजात में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या आमीन अल्लाह ताला उनके तमाम जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह, हम सबों का आमीन ईमान पर खात्मा फरमा। माह रमज़ान आमीन की बरकतें खूब खूब लौटने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आमीन। आलमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दुआ में याद रखेंगे आप सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।